السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل کے مزید بیان سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حقوق العباد کیا طاقت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کسی ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے فرشتوں نے بھی کہا کر دو اور زمین کے انسانوں نے بھی کہا کر دو، آدم سے لے کر آخر انسان، دنیا کے انسانوں نے بھی کہا اس کو مار دو، اور آسمان سات کے فرشتوں نے کہا اس کو مار دو، اور ہے بے گناہ، تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے انسانوں فرشتوں کو ایک بے گناہ کے بدلے جہنم میں ڈال دے۔ مائز اسلمی سے زنا ہوا، ابو بکر کے پاس گئے، زنا ہو گیا، کہنے چپ کر، توبہ کر، معاف ہو جائے گا، چین نہیں آیا۔ عمر کے پاس گئے، زنا ہو گیا، کہ چپ کر، توبہ کر، معاف ہو جائے گا، پھر چین نہیں آیا۔ پھر گئے ثابت بن حزال کے پاس، یہ انصاری صحابی ہیں، کہ جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ ان کو بتایا تو میں قربان جاؤں، کہ جی میں نے زنا کیا، مجھے پاک کریں۔ اپنے نبی کی رحمت تو دیکھو، سیرت پڑھو۔ آج کا میڈیا بہت ظالم ہے، بہت ظالم، ان کو حساب دینا پڑے گا۔ حقوق العباد کیا طاقت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کسی ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے کے لیے آسمان کے فرشتوں نے بھی کہا کر دو اور زمین کے انسانوں نے بھی کہا کر دو، آدم سے لے کر آخر انسان، دنیا کے انسانوں نے بھی کہا اس کو مار دو، اور آسمان سات کے فرشتوں نے کہا اس کو مار دو، اور ہے بے گناہ، تو میرے نبی کا فرمان ہے اللہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے انسانوں فرشتوں کو ایک بے گناہ کے بدلے جہنم میں ڈال دے۔ حقوق العباد اتنی طاقتور چیز، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت سنگین معاملہ ہے۔ لوگوں کے حقوق اور عزتوں سے کھیلنا، میں قربان جاؤں یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، آپ نے مجھے پھر چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا، وہ ادھر ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، وہ چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر ہے، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا، وہ چلا جا تو نے کوئی نہیں کیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، 4 دفعہ ہو گئی تو آپ چپ ہو گئے، کہ 4 دفعہ اقرار کے بعد گنجائش ختم ہو گئی تو آپ نے ایک اور راستہ نکالا، اے بھائی یہ پاگل تو نہیں ہے یا رسول اللہ آپ کی رحمت للعالمین۔ اللہ کی قسم اگر ایک آدمی کہہ دیتا یہ پاگل ہے تو آپ اس کو اٹھا دیتے، حد ختم کر دیتے، کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے، یہ تدبیر بھی نہ چلی، آپ نے 6 دفعہ ترتیب بنائی اس کو بچانے کی، دیکھو شراب تو نہیں پی ہوئی، نشے میں تو نہیں ہے، اگر کوئی ایک بھی کہہ دیتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے، کہا جی نہیں نشے بھی نہیں ہے۔ جب ان پر حد لگی تو 2 صحابی آپس میں کہنے لگے اچھا خاصا اللہ نے چھپایا تھا، آگے گدھے کی موت مر گیا، آپ نے سن لیا، آپ واپس جا رہے ہیں تو ایک گدھا مرا پڑا تھا، پیٹ پھٹا ہوا، آپ نے کہا بھائی ادھر آؤ، وہ دونوں آگے، کہ اس کا گوشت بیٹھ کے کھاؤ میرے سامنے، کہ یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، اس کا ناپاک حرام مردہ، کہ ابھی جو تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور اس سے زیادہ تم نے ناپاکی کا قدم اٹھایا ہے، تم اس کو برا بھلا کہہ رہے ہو، اور میں اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوں جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ غامدی عورت آ گئی، یا رسول اللہ غامدی امرہ غامدیہ مجھ سے بھی گناہ ہو گیا، مجھے بھی پاک کریں، اور مائز کی طرح مجھے مت کہیں کہ تو نے نہیں کیا، ہو گیا ہے، میرے پیٹ میں اس کا حمل ہے، تو آپ نے اس کو بچانے کے لیے کہا پہلے بچہ پیدا کر پھر آ، تاکہ 9 مہینے گزریں گے یہ بھول جائے گی، اس کے اندر ایمان کی حرارت تھی، وہ 9 مہینے بعد پھر آ گئی کہ یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ ماں بننے کے بعد کوئی موت قبول کرتی ہے؟ آپ نے پھر دوسرا راستہ کہ جا اس کو دودھ پلا، جب یہ روٹی کھانے پر آئے پھر اس کو میرے پاس لیا، 2 سال دودھ پلا، 2 سال 9 مہینے گزر گئے، اور ایک دن چشم فلک نے دیکھا۔ تعریف ایسے نمونے پیش کرنے سے عاجز، جو سمت کو ایسی تعریف ملی ہو، کیا میرے پاس تو الفاظ کوئی نہیں، صرف احساسات ہیں جنہیں میں الفاظ کا جامع پہنا نہیں سکتا۔ بچے کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ سے وہ روٹی کھا رہا تھا، ایک ہاتھ سے ماں کو پکڑ ہوا تھا، کہ یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کے سامنے ہے، اب آپ کسی کے حوالے کریں، میرے اوپر حد قائم کریں، تو آپ قربان جاؤ۔ آپ نے کہا کون ہے جو اس بچے کا باپ بنتا ہے اور جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی ضمانت دیتے؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ
मैं इसको पालूंगा, फिर जन्नत में मेरा साथ साथ। ये तो हरामी बच्चा है, तुम्हारा माशरा क्या कहेगा? सीरत पढ़ो। ये सारी बातें मैं कोई अपनी तरफ से खड़ के थोड़े बयान कर रहा हूं, तो तुम्हें पता चलेगा कि इंसान कैसा होता है, इंसान कैसे होता है। उस पर हद कायम की गई, उसके खून का फवारा छूटा, हज़रत खालिद बिन वलीद के जिस्म पे पड़ा, तो उन्होंने ऐसी सख्त बात की कि गुनाह करती हैं फिर अपने आप को भी हमें मुसीबत में डाका। खालिद खामोश हो जा। इस औरत ने वो तौबा की है, पूरे मदीने पे तकसीम करो, सबकी बख्शिश हो जाए। तो मेरे अजीजों, मेरी आखिरी चंद नसीहतें हैं। उम्मत बन के चलो, मुसलमान बन के चलो। ये जो तफरीक डाली है हमारे खतीबों ने, अपने आप को उस आग से बचाओ, अपन मसलक पे चलो। औरों के लिए हाथ यूं रखो, सीने तंग न करो, हाथ तंग न करो, कुरान को मुताला करो, नबी की सीरत का मुताला करो, आपस में कभी नफरतों की दीवारों जंग न खड़ी करो, आपस में कता ताल्लुक न करो। माँ बाप से लड़े हो जाकर उठ के माफी मांग लेना, बहन भाइयों से लड़े हो उठ के माफी मांग लेना, बीवी से कोई झगड़ा है, कोई शादीशुदा भी लोग बैठे हैं, या बीवी का खामिन से झगड़ा है, आए में आपस में सुलह कर लो। खामिन बीवी की सुलह इतना बड़ा अमल है कि जब ये लड़के सुलह करते हैं, अल्लाह इतना खुश होता है, उनके पिछले सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देते। तो बच्चे आपस में कोई लड़े हुए हो, ग्रुप बंदियां हो जाती हैं और हॉस्टल लाइफ में ज्यादा हो जाती हैं, तो उसको भी तोड़ के ना एक दूसरे के गले लग के एक दूसरे को प्यार दो, खुद पहल करो, जाके सलाम करने में पहल करो, तो अल्लाह के फजल करम से तुम अल्लाह के महबूब तरीन बच्चे बन जाओ, महबूब तरीन नौजवान बन जाओगे अगर एक दूसरे को माफ करना सीखो और अल्लाह के नाम पे खर्च करना, इस उम्र में खर्च करना सीखो। कॉलेज में होते अगले का खर्च हो जाए, मेरा बच जाए, तो तुम सखी बनो। अल्लाह को सखी से मोहब्बत है। बखील से अल्लाह दोस्ती लगाता नहीं और सखी से दोस्ती तोड़ता नहीं। खर्च किया करो, गरीबों पर भी, अपने दोस्तों पर भी, तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए वहां से रिस्क के दरवाजे खोलेगा जहां से रहमो गुमान भी नहीं। तो मेरे अजीजों, ये चंद बातें हैं। सिद्क़ हदीस, बोल में सच्चाई हो, हिफ्ज़ अमानतिन, दयानतदारी हो, धोखा न हो, हुस्न खलीक़तिन, अखलाक अच्छे हो, इफ़्फ़तुन फ़ी तुअमतिन, रिज़्क़ हलाल हो, तो फिर दुनिया की हर दौलत तेरे कदमों पर अल्लाह ने डाल दी है, तेरे कदमों पर डाल दी है। तुझे किसी चीज की कमी कोई नहीं। अगर ये चार चीजें, अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं तेरे पास। अगर अपने नबी से प्यार ना करें तो किससे प्यार करें? कौन वफादार है? क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूंगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मेरे रब की कसम। यौम यफ़िर्रुल मर्रु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी यौमइज़िन मिन यौमइज़िन बनीहि व साहिबतिहि व अख़ीहि व फ़सीलतिहि अल्लती तुवीहि व मन फ़िल अर्ज़ि जमीआ। कल्ला, क़यामत के दिन मैं कहूंगा सफिया मैं तुम्हें नहीं पहचानता। ये कहेगी मौलाना साहब मैं आपको नहीं पहचानती, ये यूसुफ मेरा बेटा बैठा है। मैं कहूंगा कौन हो, कहां से आए हो? ये कहेगा अब्बा आप कौन हो, कहां से आए हो? भाई भाई को नहीं पहचानेगा। माँ और औलाद का कितना गहरा रिश्ता होता है। माँ कहेगी मैंने तुम्हें जना ही नहीं है। और जब जहन्नुम में एक चीख मारेगी तो सारे इंसान और फरिश्ते और अंबिया ऐसे गिरेंगे और सब नफ्सी नफ्सी। आदम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ईसा, मूसा, यूशा, लूत, शुएब, सालेह, हूद, सारे अंबिया नफ्सी 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 नफ्सी, मेरी जान बचा, मेरी जान बचा। एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह, हम आपके कुर्बान जाते। जिस दिन माँ नहीं पूछ रही, नबी नहीं पूछ रहे, बेटा नहीं पूछ रहा, भाई नहीं पूछ रहा, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। तो नजरें तवाफ करेगी, ये आवाज कहां से आ रही है? ये कौन बोल रहा है? सबसे अलग कौन है जो उम्मती उम्मती कह रहा है? जब नजरें
आवाज की तरफ चलते 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 पहुंचेंगी तो वहां मेरे आपके झोली फैला मेरी उम्मत को, या अल्लाह मेरी उम्मत को। कौन सी उम्मत जो सारी जिंदगी शराबें बेचते रहे, जुए खेलते रहे, जिना करते रहे, सूद खाता रहे, चोरियां करते रहे, टाका पैदा को क्या रहे। मेरी उम्मत को बचा, मेरी उम्मत को बचा। इससे प्यार ना करे तो और किससे करे। मौत पे रिश्ते टूट जाते, मेरे नबी ने उस दिन भी अपने रिश्ते को नहीं तोड़ा। इब्राहिम जैसी शख्सियत कहेंगे, सुनो ए अल्लाह, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा, तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता मुझे बचा। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं, मेरी जान में मरियम जाने तू जाने, मेरी ईसा। 5 बड़े रसूल हैं, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तस्लीमात। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, या अल्लाह, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं कर सकता, मेरी जान बचा। और मेरा नबी कहेगा, या अल्लाह मेरी उम्मत को बचा। कौन सी उम्मत यानी सारी जिंदगी उसका मजाक उड़ाया। मेरा नबी कहता, दफा हो जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुमने मेरी नस्ल को कत्ल किया, तुमने मेरे घराने को उजाड़ दिया। बिला ये नहीं कहेंगे, या अल्लाह मेरी उम्मत के नेकों को बचा ले, मेरी उम्मत के मुत्तकी, मेरी उम्मत की राबिया बसरी जुनैद बगदादी को बचा। नहीं, या अल्लाह सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल, सारी उम्मत को मेरी झोली में डाल। या अल्लाह कहेगा, वाला सौफ माफी चाहता हूं, जज्बाती हो गया हूं। मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। थोड़े थोड़े इशारे करके बता देते हूं। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया, और नहीं तो मेरी माँ तो होती, क्योंकि माँ को देखा है, बाप को देखा नहीं है। तो फरमाया, काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता, और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती, मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, जी अम्मा जान मैं आ रहा हूं, नमाज से पढ़ा दूंगा। अपने वालिदैन की इज्जत करो। यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप पलट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया, हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस, और वो करन की शाख से होगा, उससे दुआ कराना। अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह, किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए। कहा, भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा। कहा, तुम करनी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? उमर ने फरमाया, वो नहीं, तू पागल है। किधर है? का यूं ऊंट चढ़ाने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। तो देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चढ़ रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? कहा, जी मैं मजदूर हूं। कहा, तेरा नाम क्या है? कहा, जी अल्लाह का बंदा। कह रहे, भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा, भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ। तो हजरत अली बोले कि भाई ये है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे। मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहली दफा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। फरमाइए, आप हजरत उमर ने कहा, हाथ उठा हमारे लिए दुआ।
तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आज इस मिस्कीन, मैं दुआ करूं, मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहा हमें हमारे नबी ने फरमाया था और ऐसा है जो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है नहीं, जिहाद है नहीं, इल्म है नहीं, नमाज है नहीं, रोजा है नहीं, ज़कात है नहीं, खैरात है नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले आओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो, वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपने उंगली को फेरता जा, जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियां की, क्योंकि सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की। मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहां दी जहां मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियां क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हज़रत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हज़रत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं आयशा, सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयहुव्विनु अलैहि अल-मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा, मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की जबान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सुलूक, ये मोहब्बत। तो हाँ, हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफर से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भी चले जाओ, सारे आगे चले गए, तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाए। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा आयशा नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाए। कैसे लगाए? तो कहने लगे हमें दौड़ लगाई। कहने लगे मैं आगे निकल गया, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफर से आ रहे थे, तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाए। तो जी लगाए। कौन दिनों जरा मैं मोटी हो गई थी, नहीं? तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिल्का, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए। एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो। बैलेंस जिंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास परसों 30-40 लोग आ गए। वो यहाँ जो सलमा साहिबा हैं, सलमा ही नाम है, सलमा जाहिद। तो एक ने कहा जी हाँ हम औलाद के बारे में बड़े परेशान है, क्या करें, कोई हमें इसका सोल्यूशन बताए। मेरे को बहुत आसान है, माँ अपने बच्चे को टाइम दे। नसीहत की बात ही कर रहा हूं, टाइम दे। मैंने कल आपको
शक्ल बना के दिखाया था कि मेरे नबी हसन हुसैन को कमर पे बिठा के कमरे में चक्कर लगाते हैं। इतने बड़े हस्ती, इतने बड़े नबी, और बच्चों के लिए वक्त निकाल रहे हैं और उनको लेकर घूम रहे हैं। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और उनकी बहन ज़ैनब को बिठाते और फिर कमरे में चक्कर लगाते। फिर फरमाते तुम्हारा ऊंट कैसा है। एक दफा आप सजदे में गए, फर्ज नमाज, फर्ज, और सजदा लंबा, इतना लंबा हुआ कि सहाबा समझे अल्लाह के नबी फौत हो गए। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैं पहली सब में था तो मैंने यूं करके देखा, वे चक्कर भी है, तो देखा दोनों भाई हसन हुसैन मेरे नबी की कमर पे चढ़े हुए थे और मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। ये काम करो तो बच्चे तुमसे प्यार करेंगे। तुम कहते हो बच्चे हमसे डरते नहीं। मैंने कल भी कहा था डाइन ना बनो, मां बनो, थानेदार ना बनो, बाप बनो। तो उन्होंने ऐसे हाथ आगे किया कि मैं बच्चों को नीचे उतारूं। तो मुझे देखना, आपने यहां से ऐसा सजदा होता है ना, तो आपने इधर या इधर से देखा कि एक हाथ आगे आ रहा है मेरे बच्चों को उतारने के लिए, तो आपने सजदे में यूं किया। ये देख रहे हो, वो पीछे हट गए। जब तक वो खुद नहीं उतरे मेरे नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया। और जब नमाज से फारिग हुए तो एकदम दोनों को अपनी गोद में लिया। कभी अभी हुमा व अम्मी ला तुहुमा, मेरी जान कुर्बान हो इन दोनों पर, ये मेरे जिगर के टुकड़े हैं, इन्हें दुख ना पहुंचाना। क्या आप देख रहे थे एक जहर में तड़प तड़प के मारा जाएगा और एक का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया जाएगा। आपको औलाद की मोहब्बत, नबी जिस दिन आप जा रहे थे पीर 12 रबीउल अव्वल 11 हिजरी 611 ईस्वी 6 जून, आपने सारी बीवियों को बुलाया, इत्मीनान से मिले, रुखसत फरमा दी। फिर दामाद अली को बुलाया, उनका सर अपनी गोद में रख के उनके कमर पे हाथ फेर। न फातिमा को बुलाया, उनके कान में कहा बेटी मैं जा रहा हूं। वो रोने लगी, करो नहीं, तू भी जल्दी मेरे पास आ जाएगी। 6 महीने बाद सिर्फ 24 साल की उम्र में हजरत फातिमा का इंतकाल हुआ। फिर आपने अली को बुलाया, दुआ दी। का फिर हसन हुसैन को बुलाओ। यूं ही आपने उनको यूं लिया, साहब के ऐसे पानी की तरह आंसू बहने लगे। इस तरह कि आप आगे देख रहे थे कि एक बच्चे का सर कट के नेज़े पे चढ़ रहा है और एक जहर में तड़प रहा है, लेकिन आपने तकदीर, अल्लाह की तकदीर पर राजी हो गए। और जिब्रील, थोड़ी देर बाद जिब्रील आए, या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें। मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे ना जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। आपने फरमाया अगर मैं कहूं तो मेरी जान निकालोगे? कहा जी निकालूंगा। तो आपने जिब्रील को देखा, आदमी यहां से सवाल करता है, तू क्या कहता है, जाऊं या ठहरूं? तो जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है। ऊपर सारे स्टेज सज गए हैं आपके वेलकम कहने के लिए। आज सातों आसमान के फरिश्ते, सुनो अब मेरी आखिरी बात है। आपने कहा देखो हसन हुसैन के लिए हाथ नहीं उठाया, देख रहे थे तड़पता हुआ जहर में और कटता हुआ सर, उनके लिए हाथ नहीं उठाया। आपने जिब्रील से कहा जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें। ये जो हम बैठे हुए गुनाहों के दाग अपने सीने पर लेकर, चेहरे पर लेकर, कहा जाओ पूछ के आओ मेरी उम्मत के साथ क्या करें। मलकुल मौत वहीं खड़ा रहा, जिब्रील वापस गए और वहां से पैगाम आया कि मेरे महबूब हम आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम, जब टाइम भी खत्म हो चुका है, मैं आखिरी बात कर रहा हूँ, अगर उस वक्त मेरे नबी ये अल्लाह को न मनवाते तो आज हम भी बंदर खंजीर बन के फिर रहे होते। दुआएं दो उस कमली वाले को जो अपना जिगर उठा गया। एक रात आप भूख से लेटे हुए ऐसे, कभी यूं होते हैं कभी यूं होते हैं। करो हजरत आयशा के घर की बारी,
कभी ऐसे होते हैं, कभी ऐसे होते हैं, फिर एकदम आप आगे हुए और वो जो चारपाई की लकड़ी होती है उस पर अपने पेट को यूं रखा और ऐसे झुक गए, यूं झुक गए। हजरत आयशा बेकरार होकर खड़ी हो बैठ गई, या रसूलल्लाह ये आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे थे? मेदे को इकट्ठा कर रहे थे, भूख की शिद्दत। फरमाया आयशा भूख बड़ी लगी, आयशा भूख बड़ी लगी, जिसके लिए कायनात बनाए आयशा भूख बड़ी लगी। हज़रत आयशा रोने लगी, या रसूलल्लाह आप यूं हाथ उठाएंगे और आपके लिए सब कुछ आ जाएगा, आप मांगते क्यों? आयशा मुझसे पहले मेरे भाई अंबिया इसी फाके में गए, मैं भी इसी फाके में अपने रब से मुलाकात कर। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, नौजवान बैठे हो, बच्चियां बच्चे, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ, अपना आइडियल अपने नबी को बनाओ और नबी वाले अखलाक सीखो, आपके घर आबाद हो जाएगी। बर्दाश्त करना सीखो, माफ करना सीखो। अब आप कैनेडियन हो या जहां से भी हो, इस पासपोर्ट की इज्जत करो, यहाँ के कानून का एहतराम करो, यहाँ वायलेशन न करो, झूठ ना बोलो, किसी को धोखा ना दो। यहाँ की लड़कियों से इसलिए शादी ना करो कि मेरे पेपर बन जाएं, क़यामत के दिन काले मुंह के साथ उठाए जाओगे। और जो हुकूमत तुम्हारे लिए कानून बनाती है उसको फॉलो करो, टैक्स की चोरी मत करो। ये गवर्नमेंट तुम पर लगाती है, हमारी हुकूमतें तो लगाती नहीं है, लेकिन ये हुकूमत तो तुम पे लगाती है। तो अल्लाह के वास्ते चोर न बनो। टैक्स की चोरी बहुत बड़ी चोरी है कि सब आपके कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ के कानून को औरों से ज्यादा अच्छी तरह फॉलो करो। दूसरा, यहाँ गैर मुस्लिम रहते हैं, सबको इज्जत दो, सबको इज्जत दो, उनकी खुशी में उनको मुबारक दो। उन पे गम आए तो जाके उनके दुख दर्द को बांटो। वो बीमार हो जाएं तो हॉस्पिटल पूछने जाओ, वो मर जाएं तो घर वालों से जाकर अफसोस करो। तब जाकर वो इस्लाम के लिए सोचेंगे कि ये कौन है मोहब्बत करने वाले, हमदर्दी करने वाले। हम अपने ही कुएं में घूम रहे हैं मेंढक की तरह। किस तरह बात आगे जाएगी जब तक वो हमारे अखलाक नहीं देखें, हमारी मोहब्बत नहीं देखें, हमारी खिदमत नहीं देखें। कितने यहाँ ओल्ड होम्स बने हुए हैं, चक्कर लगाया करो, जाके सिर्फ एक स्माइल दे दो तो उस बूढ़े का सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। कितने करने के काम हैं।